إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. سورہ حشر آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خاص طور سے خطاب کر کے فرمایا ہے. مومنوں کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں مومنوں کو خطاب کیا ہے, کہیں لوگوں کو خطاب کیا ہے. جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الناس, اس سے پوری بنی نوع انسان خطاب ہے. اس میں کافر, مشرک, یہود, نصارہ, شیعہ, جو بھی دنیا میں رہتا اور بستا ہے, ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے مخاطب ہوتا ہے. اور جہاں میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اس سے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے. صرف مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہاں مخاطب ہوتا اور کہتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ سے ڈرو, ڈرتے رہو. اور فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر شخص اس بات کو دیکھ لے, بھال لے کہ اس نے کل کے دن کے لیے, قیامت کے دن کے لیے یا قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بنا کے رکھا ہے, کیا کچھ بھیجا ہے جو کل اس کو حاصل ہوگا. مرنے کے بعد جو کل آنے والا ہے, قیامت آنے والی, اس کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ساتھ واتقوا اللہ, اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. جو کچھ بھی کرتے ہو, کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے, سارے کام سے باخبر ہے. چاہے رات کو رضائی میں اوڑھ کے کام کرو, موبائل چلاؤ, چاہے اندھیرے میں, چاہے اجالے میں, چاہے اکیلے میں, تنہائی میں, کہیں بھی رہو گے, جو کچھ بھی کرو گے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور فرمایا اللہ نے یہاں پر اور بات آگے کہا, اور تم کس کو کہا, مومنوں کو خطاب کر کے, اور تم لوگ اے مومنو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا ہے. اللہ کے احکام کو جن لوگوں نے بھلا دیا ان کی طرح مت ہو جانا, کیونکہ اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ہے. اور ایسے ہی لوگ نافرمان و فاسق ہوتے ہیں, ایسے ہی لوگ اللہ کی نگاہ میں نافرمان ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو یعنی اس آیت میں مخاطب مومن ہے, اور کل کے دن کی بات کہی گئی ہے, قیامت کے دن کی بات کہی گئی کہ کل کے دن جو کچھ تم بھیجے ہو کل کے لیے اس کی جو ہے تھوڑی سی دیکھ بھال کرو کہ کیا تم نے کمایا اور کیا کچھ بھیجا ہے.
اب دیکھیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا، واض و نصیحت کیا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیے، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام آپ کریے، اور بطور تاکید اللہ نے 2 مرتبہ اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پہلی بار کہا، اور پھر کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ 2 بار اللہ نے اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف ہی انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کون نیکی کرنے جائے گا؟ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، صدقہ خیرات زکات حج عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے، ہماری پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن اور ہمارے پر فرض ہے اور ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، پکڑے گا۔ اس لیے ہم اس ڈر سے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے پر فرض بھی کیا ہے، اور ہمارے اوپر جب فرض ہے تو ہمارے اوپر ہمیں کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کا خوف، آپ دیکھیں دنیا میں یہ جتنے بڑے بڑے حالات دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو بڑی بڑی ڈیریں پکتی ہیں مزاروں پہ قبروں پہ، کیوں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، یا تو کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کام کریں گے تو ہم اس چیز سے بچ جائیں گے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اس لالچ میں ہمیں کچھ مل جائے گا۔ دونوں پہلو اس کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کوئی 10 20 50 ہزار لاکھ خرچ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی چیز اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اور خاص طور سے ڈر ہوتی ہے کہ ہم نے نظر مانی تھی کہ ہم نے یہاں جا کر کے جو ہے اللہ کے دربار کو چھوڑ کے غیر اللہ کے دربار پر جانا ہے، نظر مانی تھی کہ ہمیں دیکھ چڑھانا ہے، نظر مانی تھی کہ ہمیں نظر و نیاز کرنی ہے، ہمیں بکرا ذبح کرنا ہے، ہمیں مرغا ذبح کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر پھر وہی مصیبت آ جائے گی جو پہلی تھی، جو ہم جس سے ہم نجات پا چکے ہیں۔ تو ڈر ہوتا ہے وہاں اسی، اس لیے اللہ کا ڈر اگر دل میں ہوگا تبھی آپ نیکی کے کام پر آگے بڑھیں گے، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے اجتناب پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ آپ کو ڈر ہے کہ میں اگر غلط کام کروں گا تو اللہ میری پکڑ کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں کوئی غلط چیز دیکھوں گا، سنوں گا، یا کسی اور چیز کو کوئی کام غلط انجام دوں گا تو دنیا میں بھی میری پکڑ، آخرت میں بھی پکڑ، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی، اس لیے آدمی اس سے اجتناب کرتا اور بچتا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا، اللہ نے اس آیت میں کہا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، گویا کہ اس دنیا میں رہ کے آپ کو کچھ کرنا ہے، تبھی کل کے لیے آپ دنیا میں کچھ کریں گے تبھی کل آپ کو ملے گا۔ دنیا میں آپ کچھ بوئیں گے تبھی کل کے دن آپ کاٹیں گے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا کی حقیقت فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن یہاں سے دنیا اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ دنیا دار العمل ہے۔ دار العمل کا مطلب کام کرنے کی جگہ ہے، جہاں اچھے اور برے کام کرتے ہیں، اور آخرت جو ہوگی وہ دار الجزا ہوگی، جو کچھ آپ دنیا میں کیے رہیں گے اس کا بدلہ وہاں آپ کو آخرت میں ملے گی۔ اور اگر اچھا کام کیے رہیں گے تو آپ کا انجام نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، برے کام کیے رہیں گے تو آپ کا انجام بدکاروں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بہرحال یہ دنیا میں رہ کر کے اس کی رنگینیوں میں پھنس کر کے انسان اس میں مبتلا نہ ہو جائے، غرق نہ ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور اچھا کام کرے تاکہ کل کے دن جو آنے والا ہے اس میں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں سامنے موجود ہو تو کم سے کم رسوا نہ ہو۔ دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت پیش کرتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے نزدیک
एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, बाउज़ा मच्छर को कहते हैं, जानते हैं? मच्छर के पर, मच्छर तो बजाते खुद एक छोटी सी चीज है, छोटा सा कीड़ा है ना, और उसके पर उससे भी छोटा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक अगर दुनिया की हकीकत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घूंट पानी भी नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, लेकिन क्योंकि अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत है ही नहीं है, इसलिए काफिरों को भी अल्लाह ताला देता है और दुनिया में रहने वाले सबको देता है। जाओ, अगर से काफिर अल्लाह की इबादत नहीं करता, मुशरिक गैरुल्लाह की पूजा करता है, बिदअती कुछ और काम करता है, मोमिन अल्लाह की इबादत करते हैं, फिर भी इस दुनिया की हकीकत ना होने की वजह से अल्लाह ताला काफिरों को भी देता है कि चलो इस दुनिया की हकीकत नहीं तुम भी ले लो। अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिरों को पानी भी नहीं पिलाता एक घूंट, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसके पर के बराबर भी हैसियत नहीं है, इसलिए अल्लाह पर जो है काफिरों को भी देता। जाओ, मालूम है कि दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और अगर होती तो अल्लाह ताला काफिरों को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। समझ में आई बात? इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इसकी कोई हकीकत और नहीं है। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत में, तिरमिज़ी की रिवायत है, फरमाया कि माली वाली दुनिया इन्नमा मिस्लु दुनिया कमसल राकिब क़ाल अय्ना फी ज़िल्ल शजरतिन फी यौम साइद सुम्मा राहा व तरकहा। ये दुनिया मेरे नजदीक, तुम्हारे नजदीक दुनिया क्या है? फरमाया कि इसकी मिसाल ये है कि एक सवारी करके आता है और आने के बाद किसी एक दरख्त के नीचे लेट जाता है, किसी एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाता है, सो जाता है, या वैसे भी लेट गया, तुम राहा व तरकहा, फिर उसके बाद उठता है और छोड़ करके उस तरफ को चला जाता है। बस इतनी हकीकत है ये दुनिया। आप दुनिया में आए 1 साल से लेकर के, पैदाइश से लेकर के और 70-80 साल तक, आपकी वफात तक यही है कि आप एक दरख्त के नीचे मौजूद हैं और ये दरख्त को एक दिन छोड़ करके आपको चले जाना और ये साया यही कहीं रह जाएगा और आपको दुनिया तर्क कर देना, छोड़ देना। इसकी हकीकत इतनी है कि जितनी जो है मुसाफिर आया और वहां उस पेड़ के नीचे सोया और उसके बाद उस करके चला गया और दरख्त का साया वहीं का, दरख्त वहीं का वहीं रह गया और चला गया। ये दुनिया की हकीकत है। और बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, मैंने इसे पहले भी पेश किया था कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ा, अखर मन कदैया, मेरे कंधे को पकड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया, या उमर कुन फी दुनिया, या अब्दुल्लाह इब्न उमर कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन आबिर सबील। आए उमर, दुनिया ऐसा है कि इसमें एक राह चलते मुसाफिर की तरह रहो या एक अजनबी की तरह रहो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस की तशरीह करते हैं, कहते हैं कि इज़ा अम्सैता फला तंतज़िर सबह, जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो, व इज़ा असबहता फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह कर लो तो फिर शाम का इंतजार मत करो, क्योंकि पता नहीं आपको कि कब कहाँ किस वक्त मौत आ जाए, सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, हर वक्त आपको पता नहीं है कि कब कहाँ इंसान दुनिया से रुखसत हो जाए। और फरमाया और कि अपनी बीमारी को सेहतमंदी से पहले, सेहतमंदी को बीमारी से पहले गनीमत समझो, और मौत आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझो। मौत आ गई तो कुछ नहीं कर सकते आप, लाख कोशिश कर लेंगे अल्लाह के नजदीक, लेकिन आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा, वापसी नहीं मिलेगी, और आपको जो कुछ किया होगा आपने वही आपको उसका बदला आपको मिलेगा। बहरहाल एक शायर ने कहा है कि आने जाने का खेल जारी है, कौन जाने कब किसकी बारी है, हर किसी को आना और जाना है, और ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। इस दुनिया की हकीकत के ताल्लुक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप बूढ़े से नजर आ रहे हैं, आपके बाल सफेद होने लगे, ऐसा लगता है कि आप पर बुढ़ापा छा गया है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर, मुझे सूरे हूद ने, सूरे वाक़िआ ने, सूरे अम्मा तसाअलून ने और सूरे इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरे कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया है।
ये सूरतें ऐसी हैं जिसको आप पढ़े तो तफसीर के तर्जुमे को कि इसमें कितनी ऐसी बात अल्लाह ताला ने जिक्र की है कि इंसान अगर सोच ले तो कभी गलतियां करने पर वो न उभरे। सूरह हूद में खास तौर से उन कौमों का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है जो आयत इलाही और पैगंबर इलाही का इनकार किया करते थे, अल्लाह के रसूल का इनकार किया करते थे और पैगंबरों की तकज़ीब करते थे, झुठलाते थे। और यही वजह थी कि वो लोग अज़ाब इलाही का निशाना बन गए। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, बहुत सारी कौमें हैं जिन्होंने अपने पैगंबरों की तकज़ीब की, रसूलों को झुठलाया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो लोग मुजरिम करार पाए। अल्लाह ने आजाद भेज करके सब खत्म कर दिया और कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ तारीख के सफ़हात में हर से गलत की तरह या तो मिटा दिए गए या तारीख के औराक पर जो है इबरत के तौर पर मौजूद है कि लोग उसको पढ़ें और नसीहत हासिल करें, और कुछ नहीं। सूरह हूद कभी आप मौका मिले तो आप पढ़े देखें। तो इस तरह से दुनिया इतनी खतरनाक है कि खत्म होनी है, इसलिए हमें फिक्र किसकी करनी चाहिए? आखिरत की करनी चाहिए। आखिरत की फिक्र में अगर आप रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप इंशाअल्लाह कामयाब कामरान होंगे। दुनिया की हकीकत के ताल्लुक से मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हारून रशीद का नाम आपने सुना होगा, मशहूर मारूफ हारून रशीद। हारून रशीद और ये वाकया उनकी तरफ मंसूब किया जाता, हकीकत क्या है कहीं कोई हवाला मैंने नहीं देखा, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन मिला नहीं, लेकिन ये वाकया उनकी तरफ मंसूब किया जाता है कि हारून रशीद जो है नेक बादशाह थे और अपने साथ उलमा को, दुआ को, बहुत सारे अच्छे नेकोकार लोगों को भी रखते थे। जहां जाते थे साथ मिलने करके जाते थे और रखते थे। आजकल के लोगों की तरह नहीं कि जो है ऐसे मुशीरों को और ऐसे लोगों को रखा जाए जो उनके हाँ में हाँ मिलाए और कुरान और सुन्नत से उनका कोई मतलब न हो। बहरहाल जब भी उनको कोई नेकी की बात मालूम करनी होती थी तो उलमा से राब्ता करते, फौरन के पास होते थे। इन जमीर फरोश बोलियों की तरह नहीं होते थे जो आजकल है कि वही मसला बयान करें जो बादशाह चाहता है, ऐसा नहीं था। बल्कि जो कुरान और सुन्नत का मामला था, जो रब चाहता था, जो अल्लाह की किताब और सुन्नत में मौजूद था, वो वाकया या वो चीजें वो बयान क्या करते थे। वाकया ये है कि बादशाह को एक वक्त रात में प्यास लग गई और प्यास जब लगी तो पानी लाया गया। जो उस वक्त आलिम वहां मौजूद थे वो पानी को खादिम से देने से इनकार कर दिया कि नहीं पानी नहीं देना। पानी लाया गया गिलास, लेकिन फौरन इनकार कर दिया कि पानी नहीं देना है। पानी नहीं दिया गया और बादशाह कहता है कि इमाम वक्त है कि भाई मेरी आंख रात में ऐसी नहीं खुली है, मुझे प्यास लगी थी, सख्त प्यास लगी थी और उसी प्यास की वजह से मेरी आंख खुली और तुम कहते हो पानी नहीं मिलेगा। तो कहा कि हाँ पानी की नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये बताओ कि अगर ये पानी का प्याला जो तुम्हारा खादिम पेश कर रहा है, अगर ये तुमको ना मिले, अगर तुमको ना हासिल हो तो ये बताओ इस पानी के प्याले को हासिल करने के लिए तुम कितनी दौलत सर्फ कर सकते हो। तो बादशाह कहता है, इमाम जो उस वक्त हाकिम होता है और वजीर कहता है कि मैं इस पानी के प्याले को हासिल करने के लिए अपनी आधी सल्तनत दे सकता हूँ। एक पानी के प्याले की कीमत कितनी है? आधी सल्तनत दे सकता हूँ। और पानी का प्याला इतना अहम है कि जाहिर सी बात है ये ऐसी चीज है कि अगर इंसान न पिए तो उसकी जान पर बन पड़ती है। इसी वाक़े में कुछ लोग इजाफा करते हैं कि बादशाह ने जब पानी दे दिया, बादशाह पी लिया, तो बादशाह से फिर वो इमाम वक्त सवाल करता है कि ये बताइए कि अगर ये पानी जो आपने पिया है आपके जिस्म से बाहर ना निकले, पेशाब के रास्ते से ना निकले, आपका पेशाब न उतरे, तो आप कितनी दौलत सर्फ कर सकते हैं? तो कहा कि मैं अपनी आधी सल्तनत इसके लिए दे दूंगा ताकि मेरा पेशाब या मेरा जो जिसमें पानी जाए वो निकल जाए। तो पूरी सल्तनत की हैसियत कितनी है? एक गिलास पानी की है। अब आप सोचें इस दुनिया की हैसियत क्या है। अगर पानी इंसान पी लेता है, अगर हासिल हो गया और पीने के बाद अगर वो जिस्म
से निकलता नहीं है, तो उन लोगों से पूछिए, उन मरीजों से पूछिए जिनका पेशाब रुक जाता है, या जिनके इतने मसाइल है कि खास तौर से कि बड़े बड़े अस्पतालों में लोग एडमिट हो जाते हैं उसकी वजह से कि पेशाब नहीं उतर रहा है। हालात उनसे पूछिए कि कितनी परेशानियां और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब सोचिए कि इमाम वक्त ने ये पानी की कीमत क्या मुकर्रर की और कहा कि मुझे एक पानी का प्याला आधी सल्तनत की बदौलत अगर दिल लेना पड़े तो मैं ले लूंगा। मालूम हुआ कि प्यास की शिद्दत इंसान बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन भूख की शिद्दत तो एक दिन 2 दिन बर्दाश्त कर सकता है। घंटा 2 घंटा 4 घंटा, एक दिन 2 दिन 4 दिन भी बर्दाश्त कर सकता है। इतनी एनर्जी उसके जिस्म में होती है कि वो उसको बर्दाश्त कर ले। लेकिन प्यास की शिद्दत, आप रोजा रखते हैं रमजान में, देखें कितनी 8 12 घंटे 14 घंटे में क्या इंसान की हालत हो जाती है, और वो भी अगर अल्लाह का खौफ और डर ना हो तो आप उसको भी नहीं छोड़ेगा, आप पानी पी लेंगे। और कितने ऐसे हैं कि वो भी पी लेते हैं खामोशी के साथ, चुप के साथ, और कितने ऐसे हैं जो रोजा रखते ही नहीं है सिर्फ इसलिए कि प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे कि रमजान का रोजा जो हमारे पर फर्ज है, कम से कम हमें उसको चाहे कि मुकम्मल तरीके से उसको रखें, क्योंकि ये निहायत खतरनाक है जो भाई रमजान का रोजा तर्क करते और छोड़ते हैं। बहरहाल पानी के बगैर इंसान की जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि जब जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, तो पानी तलब करेंगे। या मालिकुल यक़दी अलैना रब्बुका अलैनकुम माकिसून, वो क्या कहेंगे? पानी, मुझे पानी चाहिए, एक कतरा ही पानी दे दो। और उनको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा जिससे उनकी अतड़ियां झुलस जाएगी, जिससे उनके चेहरे का पूरा चेहरा बिगड़ जाएगा उसकी वजह से। और तो जब जन्नतियों को पानी पीता हुआ देखेंगे, जहन्नमियों को पानी, जन्नतियों को देखेंगे कि खूब आप खोरे ले रहे हैं, खूब मीठे मीठे सलसबील और नारे कौसर का पानी पी रहे हैं, और इसी तरह से खूब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का फायदा उठा रहे हैं, तो कहेंगे अफीजु अलैना बिलमा, एक कतरा ही हमें दे दो, एक कतरा ही दे दो, हम भी सैराब हो रहे। कौन मांगेगा? जहन्नमी मांगेगा। किससे? जन्नतियों से। और कौन होगा वो? आपके रिश्तेदार, आपके अजीज व क़रीब, आपके दोस्त अहबाब, आप वो लोग होंगे जिनको आप पहचानते होंगे, जिनको आप जानते होंगे, अच्छा ये फला आदमी है, जिनको हम कहा करते थे नमाज के लिए चलो, जिनको हम कहा करते थे रोजे रखो, जिनको कहा करते थे भाई जवाल में गलत कामों को मत देखो, गलत चीजों को मत देखो, मत तलाशो, ये वही लोग हैं जिनको आप एक दूसरे से जान पहचानोगी, वही कहेंगे अफीजु अलैना बिल मा, एक कतरा ही मुझे पानी दे दो, बड़ी मुश्किल है, हालत बिल्कुल सूखा हुआ है। क्या कहेंगे? उनका जवाब क्या होगा? कहेंगे कि वही जवाब होगा जो उनके रब का हुक्म होगा, उनके रब का फरमान होगा कि हम एक कतरा भी तुम्हें नहीं दे सकते, हालांकि अगर से तुम मेरे रिश्तेदार हो, अगर से तुम मेरे अजीज हो, अगर से तुम मेरे दोस्त हो, अगर से तुम मेरे साथ में 10-20 साल काम किए, हम तुम्हारी हर हालत को जानते, लेकिन हम तुम्हें कतरा पानी नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म नहीं है। एक एक कतरे के लिए इंसान तरसेगा, एक एक कतरा पानी नहीं मिलेगा, और इसी तरह से वो तड़पते रहेंगे जहन्नम में। इस पानी की इतनी अहमियत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में भी उस वाक़े से आपको दिखाया, और क़यामत के दिन भी इसकी अहमियत है। और यही पानी इतना सैराब करे इंसान को। आपको मालूम होगा कि सिर्फ और सिर्फ जिस नहरे कौसर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे और जिसको एक बार पानी पिला देंगे फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा, वो नहरे कौसर होगा जिसको एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिला देंगे फिर वो प्यासा नहीं होगा। वो जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, उसके बाद जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। और आपको मालूम होगा क़यामत का दिन एक दिन कितने बराबर होगा? दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर दुनिया का 50,000 साल, क़यामत का एक दिन होगा। और एक बार किसी ने नहरे कौसर से पानी पी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिया हुआ पानी हाथों जो है वो फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी बड़ी शान है किसकी? मोमिनों की। यहाँ मुशरिकों को धुतकार दिया जाएगा, काफिरों को धुतकार दिया जाएगा, और उनके साथ साथ और किसको धुतकारा जाएगा? बिदातियों को धुतकार दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने आप को कलमा दो मुसलमान कहते हैं उनको भी धुतकार दिया जाएगा। कासो कंसो कल निगई रबाबी, ऐसे लोगों के लिए दूरी हो जो
मेरे आने के बाद हमारे दीन को जिन्होंने बदल दिया, आने के बाद मैंने दीन को बदल दिया, ऐसे लोगों के लिए दूरी हो, उनको फटकार दिया जाएगा, फटकार दिया जाएगा और हरे कौसर का पानी नहीं पिलाया जाएगा। तो ये हालात होंगे आखिरत की। इंसान को चाहिए कि अपने आखिरत की तैयारी करे, आखिरत की फिक्र करे, दुनिया में न पढ़ करके इंसान उसमें न मुब्तला रहे। और फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिस दिन जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होगा, इंसान बिल्कुल नंगा होगा, इंसान बिल्कुल नंगा होगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तो औरतें मारे शर्म के मर जाएंगी, मर्द भी नंगे औरतें भी नंगी, किसी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं। अल्लाह के रसूल क्या हाल होगा उस वक्त। अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी किसी को फुर्सत नहीं होगा, इंसान इतना मदहोश होगा कि किसी की तरफ देखने की कोई नौबत नहीं होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, फरमाया सूरह अल-हज्ज में, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। हज़रत आयशा के सामने अल्लाह के रसूल ने आयत तिलावत कर कहा क्या ऐसा, इसमें तुम्हारा जवाब जो है मौजूद है। कहा लोगों अपने परवरदिगार से डरो, मेरा खुदा क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे वो क़यामत का ज़लज़ला, हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। दूध पिलाने वाली जो अपनी माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, आप सोचे गौर करें। इंसान तो इंसान जानवर की कितनी मोहब्बत करता है, आप उसके जानवर के बच्चों की तरफ जाएं, उसको छेड़ें, उसकी तरफ जाए तो जानवर जो माँ और उसकी जो होती है वो किस तरह से आपकी तरफ झपट पड़ती है। और इंसान माँ कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन वो हालात होंगे कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। और जिनके पेट में, जिन औरतों के पेट में हमल होगा वो गिर जाएंगे और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, मदहोश होंगे, उनको किसी की तरफ देखने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए कि ऐसी चीज होगी वहां पर कि मदहोश होंगे तो किस तो पड़ी है कि कौन औरत नंगी है, कौन मर्द नंगा है, कि कौन कपड़ा पहने है, कौन नहीं पहने, किसी को देखने की किसी को मैं सुनहाला की हकीकत तो वो मतवाले नहीं होंगे। मदहोश होने का मतलब ये नहीं है कि शराब पी करके मस्त है इसलिए मदहोश है। अल्लाह का अज़ाब इतना शदीद होगा कि उस अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत की वजह से इंसान मदहोश होगा। वो इतना खतरनाक ज़लज़ला होगा कि उस शिद्दत में दूध पीने वाली पिलाने वाली माँ जो है अपने बच्चे को भूल जाएगी, हमल वाली के हमल गिर जाएंगे और लोग मदहोश होंगे। और इसी तरह से अल्लाह का अज़ाब होगा, हालांकि वो मतवाले नहीं होंगे, अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। ये हालात होंगे उस वक्त जब इंसान दुनिया से रुखसत होकर के वहां जाएगा। और ऐसी हालात में इंसान को अगर साया मिल जाए तो कितनी बड़ी नेक बख्ती उसके लिए, कितनी बड़ी नियामत हो उसके लिए। जब शिद्दत के अज़ाब हो, जमीन तादे की तरह तपे, सूरज सवा नेज़े पर हो और ऐसी हालात में डूबते तिल का सहारा कहते हैं ना, उसको अगर कोई साया मिल जाए तो कितनी बड़ी नेमत उसके लिए होगी। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ मशहूर हदीस है कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे साया देगा। 7 किस्म के लोग होंगे कि नहीं होंगे? 7 किस्म में से कोई एक बताओ। हाँ बताइए, कोई एक बताइए जो 7 किस्म। इंसाफ करने वाला हाकिम, इमामुल आदिलुल इंसाफ हाकिम। और वो हाकिम कोई जरूरी नहीं कि बादशाही हो, हर शख्स अपनी जगह पर जहां मौजूद है वो हाकिम है। चाहे वो अपने घर का मालिक हो, चाहे वो मुदीर हो, चाहे वो बड़ा हाकिम हो, चाहे बादशाह हो, चाहे कहीं भी जिस मुकाम पर वो मौजूद है और उसके नीचे लोग उसकी जिम्मेदारी में है, तो वो शख्स अगर इंसाफ से काम लेता है तो अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। दूसरा, हाँ एक वो भी है ऐसा शख्स जो मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करे और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए करे, ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के नीचे उस दिन साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। और तीसरा, जिसका ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो,
जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है, एक नमाज पढ़ के आया दूसरे में लगा हुआ है, दूसरा पढ़ के आया तीसरे में लगा हुआ है, ये भी नमाज का वक्त हो जाएगा, नमाज पढ़नी, कहीं नमाज टूट न जाए, ऐसे वक्त मेरा सफर करूं जिसके से नमाज नहीं तर्क हो जाए, यानी उसका दिल हमेशा उसी में लगा हुआ है कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये 3 हो गए। चौथा वो होगा कि रजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला ता'लम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु बियमीनिही। ऐसा आदमी होगा जो सदका और खैरात, ये नफिल की बात है, कि वो अपने दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं मिलती है। कोई जरूरी नहीं कि आप हर बात को अपनी बीवी को बता करके ही आप किसी को दें और लें। कुछ अपने पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सिर्फ आप जाने, जो सिर्फ आपका दाहिना हाथ जाने और बाएं न जाने। नहीं कि आप किसी को 10 रियाल भी देना है तो बीवी से पूछ के दे रहे हैं, उसको दूं कि ना दूं, देने लायक है कि नहीं। कुछ तो अपने हाथ में ऐसी नेकियां रखें जो आपके काम है। ये नेकियां जाय होने वाली नहीं है, ऐसी नेकियां आपके पास होनी चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ आप जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। इसलिए ये बहुत अहम नेकी है। और 5वां, 4 हो गए, 5वां वरजुलुन दावत इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत हसीन औरत दावत देती है, अब आओ हमारी तरफ, हम तुम्हें मालो दौलत से नवाज देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ बुराई करो। लेकिन वो शख्स कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और इस वाक़े से, इस ताल्लुक से आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के यहाँ थे, लेकिन देखिए अल्लाह का डर और खौफ, सारे दरवाजे बंद हैं, हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा है, लेकिन नहीं कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं इस हसीनो खूबसूरत औरत की जाल में नहीं आ सकता, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा देख रहा है। ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के नीचे होगा। और बचे कितने? 2। हाँ, अहम चीज को आप लोग भूल रहे हैं, बताइए जी। हाँ, अल्लाह के खौफ से तन्हाई में अपनी आंखों से आंसू जारी करे। क्या है वो? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से, डर से अपनी आंखों से आंसू जारी करे तन्हाई में। और ऐसी हालात आप लोगों के पास बहुत होंगे, मिलते होंगे। इंसान को चाहिए कि कभी कभी अकेले में, तन्हाई में, अपनी गुनाहों को याद करके, अपनी जिंदगी को याद करके, पीछे जो उसकी जिंदगी गुजरी है उस हालात पर नजर रख के अपनी गिरेबान में मुंह डाल करके सोचे और करे, फिक्र करे कि अल्लाह जिस हालात से हम आए हैं, जो हालात हमारे पीछे थे, जो गुनाह हमसे हो गए, जो गलतियां हो गई है, अल्लाह ताला हम बहुत गुनहगार हैं। अपनी आंखों से अगर आंसू जारी करता है अल्लाह के डर से, जहन्नम के अजाब के डर से, अजाब कब्र के डर से, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को, अल्लाह ताला ऐसे बंदे के आंसू को जाहिर नहीं करेगा, अपने अर्श के नीचे देखा देगा। कभी कभार इंसान को ऐसा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये न सोचे कि हम तो बस हमने खा है, खलास, हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, क्या हमें आंसू गिराने की और रोने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, वरजुलुन शाब्बुन नशअ फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारा है। सबसे अहम, आप बहुत सारे नौजवान बैठे, देखिए यहाँ पर माशाअल्लाह नौजवानों की महफिल है। इसमें कोई अपने आप को ना कहे कि मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़े तो हर कोई बूढ़ा होना है, हर किसी को। ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। जब लोग सो रहे होते हैं तो आप रातों को जाग रहे होते हैं, जब लोग चौराहों पे बैठ करके गश्तियां करते हैं तो आप अज़ान आती हैया अल फलाह हैया अल फलाह की आप मस्जिद का रुख करते हैं। ये नौजवानों की जमात जो है ये बहुत ही अहम है उम्मत के लिए। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने वक्त को ज़ाया न करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके जिंदगी गुजारें। अगर के आप लोगों ने, हमने सवाल किया, बेतरतीब बताया है, लेकिन फिर भी आप लोग माशाअल्लाह एक के बाद दीगरे सब लोगों ने मिल करके सबको बता दिया है और सारा सवाल आपका सही भी था माशाअल्लाह। तो अगर सिर्फ बेतरतीब इस हदीस में है, इस हदीस को आपने बताया है, लेकिन कोई बात नहीं, बात असल थी, ये मैसेज, ये पैगाम आप तक पहुंचा रहा।
कि ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त कोई साया नहीं होगा, अल्लाह अपने आप के नीचे साया जगह देगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में सूरह अंबिया में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम फी ग़फ़लतिन मुग़रिदून, लोगों के हिसाब का वक्त आ गया है, फिर भी वो बेखबरी में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं। पता है कि मुझे मरना है, पता है कि कब्र में पैर लटक रहा है, अब 70-80 साल की जिंदगी हो गई है, अब कब टपक जाए मालूम नहीं है, फिर भी बड़ी बेखबरी से हमें मरना थोड़ी है यार, अभी फला मर गया मैं थोड़ी मरूंगा, वो फला चला गया इसका मतलब थोड़ी मैं भी मर जाऊंगा, अभी तो मुझे जीना है, अभी तो फला बेटे की शादी करनी है, फला बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, हज करना है, उम्रा करना है, अभी बहुत सारे काम, मुझे मरना नहीं है। अभी अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त आ गया है, वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून, फिर भी ग़फ़लत में पड़े हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनको फिक्र नहीं है कि एक दिन मरना और हिसाब किताब देना है। और इस आयत में जो मुराद वक्त हिसाब से मुराद क़यामत, हर घड़ी जो करीब से करीब तर हो रही है, और हर वो चीज जो करीब होती है वो आने वाली होती है। हर इंसान की मौत बजाय खुद कि उसके लिए क़यामत हो, वही उसकी क़यामत है कि वो मर गया खलास, अब उसको क्या पता कि क्या हो रहा है, मर गया। उसके अलावा दूसरे जमाना के लिहाज से जो भी क़यामत करीब है वो जमाना जितना गुजर गया है, बाकी रह जाने वालों से कम होता है। तो इस तरह से इंसान गफलत में पड़ा हुआ है। लोगों का हाल ये है कि आखिरत की तैयारी से बिल्कुल गाफिल है, दुनिया की जीनतों में गुम है, दुनिया की आराइशों में और मौज है, और ईमान के तकाज़ों से बिल्कुल बेखबर है। और ये भी मालूम है, देखें आप, इंसान को अगर पता हो कि हमारे मकान का छत गिरने वाला हो, तो आप बेखबरी से अपने घर में सोए रहेंगे? दुनिया का कोई दानिशमंद, कोई अक्लमंद नहीं है कि अगर उसको पता हो कि मेरी छत गिर जाएगी इस बरसात में, कि तो उसमें अपने अहल-ओ-अयाल के साथ उसमें सोएगा। कोई दानिशमंद अक्लमंद नहीं है, उसको पता है कि मुझे मौत आनी है, मरना है, फिर भी तैयारी करने पर वो कोताही क्यों करता है? उसको मालूम है कि मुझे मरने के बाद हिसाब और किताब देना है, फिर भी वो कोता है, फिर भी वो गफलत की नींद सो रहा है। मालूम है आबादी वालों को, बस्ती वालों को कि सैलाब आने वाला है, बारिश होगी तो सैलाब आएगी, पूरी बस्ती बह जाएगी, फिर भी बस्ती वाले बड़े आराम की नींद सो रहे हैं, बस्ती वाले बड़े आराम से चैन सुकून से सो रहे हैं। उनको अगर हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर कोई काम नहीं करते हैं तो आप बताइए कि ऐसा आदमी दानिशमंद कहलाएगा, अक्लमंद कहलाएगा? तो कहेगा बहुत बेवकूफ आदमी है, उसको पता था जब हमारी छत टपक रही तो क्यों उसके घर के नीचे सो रहा था अपने बच्चों को लेके। सारा आदमी उसी को कोसेगा, मरने वाला मर गया उसके बाद भी वो कोसेगा कि बेवकूफ आदमी था ये। मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया ये जिंदगी है, सोच लीजिए आप, जो अल्लाह ने आपको दी है ये बहुत कीमती है, इसमें तैयारी कर लें। एक दिन मरना है, सब गिर जानी है, और मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तैयारी इस दुनिया में रहकर के आपको हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर करनी है कि जो कुछ आप यहाँ बोएंगे वही आप वहाँ काटेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन हमेशा इसी में मुब्तला रहते थे कि कौन सा ऐसा अमल मिल जाए जो कर लो और जन्नत में चला जाए। हालांकि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, रोजा रखते, आपके साथ उठते बैठते, ग़ज़वात में शरीक होते हैं। सहाबा इकराम का वो मकाम था जिनको अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान हो, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। वो मकाम था तो ग़ज़वे बद्र में शरीक अल्लाह ने कहा अब चाहे जो करे अल्लाह ने इनको माफ कर दिया, बख्श दिया है। वो मकाम तो सारे इकराम का जब कहा अल्लाह के रसूल ने कि अगर एक मुट्ठी भर सदका कर दे तो मेरे और सादिकीन अव्वलीन सहाबा के मानिंद कोई नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भी इतने हरीफ थे, इसके बावजूद भी इतना रोते थे, इसके बावजूद भी इतनी इबादत करते थे कि एक दिन मरना है और मर करके हिसाब किताब देना, क्या हाल होगा, क्या सूरत होगी। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि एक सिहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, फरमाया अराबियन जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिहाबी आता है और अल्लाह के रसूल के पास पहुंचता है, कहते हैं या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतिल जन्नह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई एक ऐसा अमल बतला दीजिए जिसको मैं जरूर जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हालांकि देखिए सारे काम अंजाम दे दूं फिर भी करता वो, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बतला दीजिए जिसकी वजह से मैं वो काम करूं, वो अमल करूं और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चंद बातें बताई।
अब आप सोच लीजिए, अगर जन्नत में जाना तो ये काम आप करेंगे तो आपको जन्नत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। पहली चीज अल्लाह के रसूल ने कहा, ताअबुदिल्लाह ला तुश्रिक बिही शैया, अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा। जिसमें 90% 80% मुसलमान मुब्तला है, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं। अपने मुल्कों का हाल देख लीजिए, 70-80% लोग इसी मुब्तला हैं कि गैरुल्लाह की इबादत को अव्वलियत मिलती है, और अल्लाह की इबादत हो या ना हो उनको इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के रसूल ने उस देहाती से क्या कहा, अल्लाह की इबादत कर और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर। ये पहले नसीहत थी, पहला अमल था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को, उस आराबी को बताया। और दूसरी चीज क्या कहा, वतक़ीम सलात मक्तूबा, फर्ज नमाज को कायम कर, फर्ज नमाज को उसकी पाबंदी कर। जिसमें कितने बड़े कोताह लोग हैं, सोच लीजिए आप, गौर करें। फर्ज नमाज की पाबंदी कितने ऐसे मेरे भाई हैं कि जो सिर्फ जुमा करते हैं, जो सिर्फ ईद बकरीद की करते हैं, जो सिर्फ जनाजे की करते हैं। फर्ज नमाज की पाबंदी कर, फर्ज नमाज की पाबंदी करने पर अल्लाह के रसूल ने दूसरा अमल बताया कि अगर ये काम करोगे अल्लाह की इबादत के बाद, और दूसरा ये कि फर्ज नमाज की पाबंदी, जिसमें हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई अपने आप को कलमा गो मुसलमान भाई कहते हैं कि वो बहुत जो है कोताह नजर आते हैं। तो फर्ज नमाज की पाबंदी करो। फरमाया कि तीसरी चीज वक़ूद ज़कात मफरूज़ा, और फर्ज ज़कात जो तुम्हारे पर फर्ज हो वो अदा कर दिया करो। वतसूम रमजान, और रमजान के रोजे रखो। वो सहारी वो देहाती कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आपने मुझे बताया है कसम है उस रब्बुल आलमीन की, ना मैं इसमें कुछ कम करूंगा और ना मैं इसमें कुछ ज्यादा करूंगा, ना कम करूंगा और ना ज्यादा करूंगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा, अल्लाह की इबादत सिर्फ करूंगा, और फर्ज नमाज की पाबंदी करूंगा, ज़कात की अदायगी करूंगा, और इसके साथ साथ रमजान के रोजे रखूंगा। फरमाया कि मैं इससे न कम करूंगा न इससे ज्यादा करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फलम्मा वल्ला, कहते जब वो लौटा, वापस पलटा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, अगर कोई शख्स ये सोचता हो कि मैं किसी जन्नती आदमी को देखूं तो इस आदमी को देख लो। दुनिया में अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर कोई ये चाहता है कि मैं किसी जन्नती आदमी को देखूं तो अल्लाह के रसूल ने कहा, इस आदमी को देखो जो जा रहा है, जिसने वादा किया है कि मैंने इससे कम करूंगा ना मैं इससे ज्यादा करूंगा और वही काम करूंगा जो आपने मुझे नसीहत की है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इस जन्नती को देख लो, ये जन्नती जा रहा है। अब सोचो, दुनिया में अगर आदमी ये काम करे तो जन्नती नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बता दिया, नुस्खे कीमिया, ये नुस्खा है जिसको आप अगर कर लेते हैं दुनिया में तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। इसी तरह से एक हदीस और है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रवायत है, फरमाते हज़रत जो है सहल बिन सअद अस-सादी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतु हुआ अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास, अल्लाह के रसूल मुझे कोई एक ऐसा अमल बतला दीजिए जिससे अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। दो बातें कही, अल्लाह भी मोहब्बत करे और लोग भी मोहब्बत करें, जो हमारे पास उठते बैठते चलते फिरते जो हमें जानते वो भी मुझसे मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस हफ्ते दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया को छोड़ दे अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। दुनिया को तर्क कर दे, ये न सोच कि दुनिया ही सब कुछ है। और दुनिया को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि अब आप भूखे प्यासे मरे और आपके बीवी बच्चे हलवायाल भूखे हुए, नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आप दुनिया को भलाई के साथ तलब कर सकते हैं, इतनी हो उसके पास होनी चाहिए कि आप भलाई के साथ जिंदगी गुजार सकें। और फिर दुनिया हसना और आखिरत हसना, और आखिरत भी भलाई के साथ तलब करें। लेकिन मकसद कहने का ये सब दुनिया में इतना गर्क न हो जा, इतना इसमें डूब न जा कि सब कुछ एक तरफ हो, सिर्फ दुनिया ही दुनिया, हाय दुनिया उसमें लगा रहे। तो अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा, और अगर चाहता है कि लोग भी तुझसे मोहब्बत करें तो अल्लाह के रसूल ने क्या नुस्खा बताया, कहा कि उसकी अगर तू चाहता है कि लोग तुझसे मोहब्बत करें तो लोग जिसको पसंद करते हैं उसको तो छोड़ दे। लोग जिसको पसंद करते हैं, जिस माल दौलत को, जिस चीज को, वो छोड़ दे, खलासी मेरे लिए नहीं, जाने चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह ने जो दे रखा बस वही काफी है।
तो लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। तो लोगों से मोहब्बत कराना है तो आपको ये नुस्खा अपनाना पड़ेगा। अल्लाह से मोहब्बत आप चाहते हैं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे तो आपको ये नुस्खा अपनाना पड़ेगा। ये निहायत ही अच्छी नसीहत थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को फरमाया। लेकिन आजकल हमारा और आपका हाल क्या है कि हम चंद नेकियां कर लेते हैं, चंद नमाजें पढ़ लेते हैं और आप कुरान पढ़ लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, तो हम और आप क्या करते हैं, इतराने लगते हैं, हाँ हम तो नमाजी हैं, हम तो हाजी हैं, हम तो उम्रा करके बार बार आते हैं, हम तो कई बार हज करके आए हैं, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया और हम बहुत कुछ करते रहते हैं। अगर इंसान ये सोच ले और इस पर इतराने लगे तो आप सोचे कि मैं आपको मिसाल देकर के बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्या हाल होगा। आपने एक आखिरी बात कही, अपनी बात खत्म करूंगा मैं। हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना है आपने? एक सहाबी रसूल है साद बिन मुआज़, और साद बिन मुआज़ जो है ये 63 हिजरी में इनकी वफात होती है और बदरी सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग बद्र में शरीक है। इनकी बहुत सारी फजीलत है, मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। साद बिन मुआज़ कहते हैं जब इनकी वफात होती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। कहते हैं कि वो कौन सा शख्स है और नेक शख्स है जिसका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। फ़ुतिहत लहू अब्वाबुस समा, उसके लिए सारे आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। अब एक दरवाजा भी खोला जा सकता था, लेकिन देखिए जब इंसान का एहतराम होता है, जैसे आपके पास कोई मेहमान आया तो कहता भाई मैं आना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, अरे भाई आप ही का घर है, आइए, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। एहतराम आप कहते नहीं कहते, हालांकि वो सारे दरवाजे थोड़ी घुसता है, लेकिन फिर भी आदमी कहता है आइए आप ही का घर है, सारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले, जब मर्जी आप आइए, दाखिल हुई। अल्लाह ताला साद की वफात पर आसमान के सारे दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर। देखिए साद के वफात पर सारे दरवाजे आसमान के खोल दिए जाते हैं। और यही नहीं, आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है, अर्श हिल जाता है, साद के वफात पर अर्श हिल जाता है। और फजीलत बताओ आपको कि हजरत साद बिन मुआज़ की जनाजे में 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं। किसी और की नमाज जनाजा में फरिश्ते नहीं आते। 70,000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाया कि जब इससे पहले बहुत सारे सहाबा का इंतकाल हुआ, बहुत सारे लोग शहीद किए गए और भी बहुत सारे लोग दुनिया से गए, लेकिन किसी की नमाज जनाजा में फरिश्तों का नुज़ूल जनाजे में शिरकत के लिए नहीं हुआ, जो हज़रत साद बिन मुआज़ की शिरकत में जनाजे में शरीक थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत साद की वफात की खबर पाते हैं तो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आप जाते हैं उनके घर की तरफ, तेजी के साथ जाते हैं। सहाबा किराम ताज्जुब करते हैं, अलग किसी तेज क्यों जा रहे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं कि इतनी तेजी से आप चलना कि आपकी चप्पलों की आवाज आ रही है। जैसे आदमी तेज चलता है ना, खट 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 आवाज आती है, आवाज आने लगी। और सहाबा ताज्जुब कर रहे कि ऐसा क्यों, अल्लाह के रसूल इतना तेज क्यों चल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा कि मुझे इस बात पर खौफ है कि कहीं हजरत हंजला की तरह से, जिस तरह हजरत हंजला को फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया था, हजरत साद को भी गुस्ल न दे दे और उसको सख्त कर जाए। हजरत हंजला को जानते ही नहीं आप लोग, एक सहाबी रसूल है जिनको किसने गुस्ल दिया था, फरिश्तों ने उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं हजरत हंजला की तरह से फरिश्ते सबकत न कर जाए और उससे पहले हजरत साद को गुस्ल दे दे, इसलिए जल्दी जल्दी भागे भागे गए और हजरत साद के घर पहुंच गए। ये उनकी फजीलत थी। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा उठता है, हजरत साद अपने आप में बहुत लहीम शहीम थे, हट्टे कट्ठे लहीम शहीम थे। तो जाहिर सी बात है जब आदमी किसी चीज को उठाएगा तो जब आदमी है लहीम शहीम होगा तो उसी ताकत और उसी कुव्वत के हिसाब से उठाएगा। तो सहाबा ने उसी कुव्वत उसी हिसाब से उठाया। जब आदमी 1 कुंटल उठाएगा तो उसी हिसाब से ताकत लगाएगा, 10 किलो उठाएगा तो उसी हिसाब से उठाएगा ताकत। सहाबा ने बड़ी कुव्वत के साथ उठाया, लेकिन देखा चारपाई बिल्कुल हल्की फुल्की है, उसमें कोई वजन ही नहीं है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब जनाजा बहुत हल्का पाया, सहाबा इकराम ने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हल्का क्यों है। तो आपने फरमाया साद के जनाजे को फरिश्तों ने उठा रखा है।
साहब के जनाजे को फरिश्ते उठाए गए और इससे पहले किसी और के जनाजे को फरिश्तों ने नहीं उठाया, और न किसी की वफात पर अर्श हिला, और न किसी की वफात पर आसमान के सारे दरवाजे खुले, जो हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पर कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पर रेशम का कपड़ा हदिया में दिया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रेशम के कपड़े को लोग देख करके उसकी मुलायमत को, उसकी नरमी को और उसकी बेहतरीन अच्छाई को देख करके लोग बड़ी ताज्जुब करने लगे कि कितना ही बेहतरीन है, खूबसूरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मनादीर साद फिल जन्नह अहसन मिन हाज़ा, हजरत साद की मंदिर जो है, जो है जन्नत में इससे कहीं ज्यादा बेहतर होगी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हम लोगों ने हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की खुदाई की और उस वक्त कहते हैं मौजूद था, तो कहते हैं जब हम कब्र की मिट्टी को निकालते और पलटते और हटाते तो परत दर परत जब निकालते तो मुस्क की खुशबू आती उससे, यहाँ तक कि हम वहां तक पहुंच गए जहाँ लहद, जहाँ उनको रखना था वहां तक मुस्क की खुशबू आती रहती थी। इतनी सारी फजीलतें हजरत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद हैं। इसके बावजूद जब आपको कब्र में रखा गया तो आप पर कब्र तंग हो गई। आप सोचे हम और आप किस जगह खड़े हैं, और हजरत साद की सीरत को देखिए। इतनी सारी फजीलतें होने के बावजूद हजरत साद को जब कब्र में उतारा गया तो हजरत साद पर कब्र तंग हो गई, और इस कदर तंग हो गई कि कब्र का एक पट दूसरे पट से मिल गया और इतना बारीक हो गया जैसे कि इंसान के सर में बाल होता है इतना बारीक, ऐसे पिस करके बिल्कुल बाल की बारीक की मानिंद हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद की कब्र पर जब आपने देखा तो आप खड़े होकर की बड़ी लंबी दुआ करते हैं, यहाँ तक कि कब्र अपनी असली हालत पर आ जाती है। अब आप सोचे हमको और आपको छोटी छोटी इबादतें, छोटी छोटी मामूली इबादतें करने पर इतराना नहीं चाहिए। अल्लाह की रहमत अगर शामिल हाल होगी तो जन्नत में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। हजरत साद पर कब्र का तंग होना, और ये भी बता दूं आपको कि कोई किसी गलती की बिना पर नहीं है कब्र तंग हुई है थी, इसमें इख्तलाफ है कि क्या तमाम आदमी के कब्र पर उतारने के लिए जो है उतरने पर कब्र तंग होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ अंबिया की कब्रें ऐसी हैं जो तंग नहीं होती, इसके अलावा जितने भी मोमिन हो, काफिर हो, कोई भी जो उतारा जाता है कब्र में उसके ऊपर कब्र को तंग कर दी जाती है। सिर्फ अंबिया की कब्रें हैं जो तंग नहीं होती, इसमें सारे लोग कहते हैं कब्र में उतारने के बाद कब्र उन पर तंग कर दी जाती है। और ये अजाब के तौर पर भी नहीं होता, बहुत सारे लोग अजाब के तौर पर भी कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होता है कि हर किसी पर कब्र को तंग कर दिया जाता है। और कोई जरूरी नहीं कि वो अजाब ही के मोमिन होगा, अगर उसके सवाल का जवाब दे दिया तो उस पर कब्र तंग नहीं की जाएगी, लेकिन इस तरह से कब्र सब पर तंग की जाती है। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया से रुखसत हो जाएं और चले जाएं और हमारे ऊपर भी वो हालात दरपेश है जो काफिरों के साथ हो, जो मोमिनों के, जो बिदातियों के साथ हो, जो कुफ्फार के साथ हो। तो हमें चाहे कि हम कलमा गो मुसलमान हैं, हमें चाहे कि हम उस बात पर अमल करें जिसको अल्लाह ने कहा कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम फी गफ़लतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब किताब का वक्त आ गया लेकिन फिर भी लोग गफलत में पड़े हुए। गफलत में हमें नहीं रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि एक दिन मरना है, उसकी तैयारी करना है। और दुनिया में ज़लज़ले बहुत आते हैं, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में, कभी इंडोनेशिया में, कभी हिंदुस्तान में, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, लेकिन क़यामत जब कायम होगी इन्न ज़लज़लतुस्साअति शैउन अज़ीम, दुनिया में जब ज़लज़ले बहुत आते हैं लेकिन जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ने कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये पूरी जमीन हिला दी जाएगी। और फरमाया यौम तर्जुफुर राजिफा तत्बउहा राजिफा, एक बार नहीं, एक ही बार दीगरे आता रहेगा, एक आया, दो आया, तीन आया, ऐसा नहीं कि एक बार आया खत्म हो गया। और फरमाया यौम यत्रिस समाई कतई सिजिल कुतुब, ये जो आसमान देख रहे हो आप, ये आसमान अल्लाह ताला कहीं से किताब की मानी जिसको ऐसी लपेट लेगा अपने हाथ में, जो आसमान है ना ऐसे लपेट लेगा। और बाद रातों में आता है कि उसको लपेट करके अल्लाह ताला गेंद की शक्ल बना करके और उसको अपनी उंगली पर नचाएगा और कहेगा इनल जब्बारून अइनल क़हारून, बोले कहाँ है जो अपने आप को बड़े बड़े बादशाहों में शुमार करते थे, आज कहाँ है वो जो दुनिया में बहुत मगरूर थे। कोई जवाब नहीं देगा। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई अल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार,
आज सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और किसी की नहीं है। अभी साथियों और दोस्तों, ये दुनिया फानी है, इसलिए हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में हम डूबे रहे और एक दिन मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे और उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आ गया तो आपको लेकर के ही जाएगा वो। इसलिए इस दुनिया में हमें रहना है तो हमें नेक काम करना चाहिए, आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अगर हमने आखिरत की फिक्र कर ली, उसकी तैयारी कर ली, तो इंशाअल्लाह नतीजा अच्छा होगा। फिक्र, तैयारी और नतीजा, ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। फिक्र करें और तैयारी करें, इंशाअल्लाह नतीजा अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर रखेगा और अल्लाह ताला जहन्नम से महफूज रखेगा, अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा और जन्नत में हमको आपको तमाम मोमिन मर्दों मोमिन औरतों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम लोगों के साथ नेकोकारों जैसा मामला फरमाए, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ अल्लाह ताला हम लोग का मामला करे। और जो लोग इस दुनिया में गाफिल हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि वो नमाज की पाबंदी करें, रोजी की पाबंदी करें। और जो लोग बहुत ज्यादा गाफिल हैं, खास तौर से इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट में लोग इतने मशगूल हैं, इतने ज्यादा मशगूल हैं कि नमाज, रोजा, ड्यूटी जहां भी वो मौजूद है बस उसी में मुब्तला है। उनको चाहिए कि कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए के खौफ से, डर से अपने आप को महफूज रखें। ये निहायत ही खतरनाक चीज है जो आपको जहन्नम तक पहुंचा सकती है। इसलिए अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम लोग को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी